نکاح نامہ لے کے اس کو ابھی فل کر لیں آپ, ٹھیک ہے. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں آج کل ٹائم بچانے کے چکر میں ہوں, کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام ہو. تو جب کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے لوگوں سے تو پوری بات سمجھتے نہیں ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ میرا بھی وقت ضائع اور سامنے والے کا بھی ضائع. ابھی بیچارے بہت اچھے لوگ ہیں, حیدرآباد سے آئے ہیں, نکاح پڑھانا ہے انہوں نے. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ 1 بجے یہاں پہنچ جائیں, پہنچنے کے بعد مجھے میسج کریں کہ ہم آ گئے ہیں. مقصد ان کی شکایت لگانا نہیں ہے, بہت اچھے لوگ ہیں. مقصد یہ کہ اصول اور ضابطہ سمجھانا مقصد ہے کہ ہر آدمی اصول ضابطے پہ چلے گا تو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور کام بھی اچھے میں ہو جائے گا. میں نے ان سے کہا تھا کہ 1 بجے پہنچنے کے بعد مجھے میسج بھیجیں کہ ہم آ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہا تھا کہ فون کریں, کیونکہ میں فون نہیں اٹھاتا اپنے مخصوص ٹائمنگ کے علاوہ. میسج آئے گا تو میں دیکھ لوں گا کہ بھائی یہ پہنچ گئے ہیں تو میں آ جاؤں گا. تو میں اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر 1 بجے گھر پہنچا ہوں آج, کہ بھائی کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے. اور یہ 1 بجے کا ٹائم اس لیے دیا کہ نکاح نامہ فل کرنے میں جو ٹائم خرچ ہوگا نا وہ اس دوران ہو جائے گا. صحیح ہے, نکاح پڑھانے میں تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا نا, اصل مسئلہ ہوتا ہے نکاح نامہ فل کرنا. تو یہ جو ٹائم ہے نا اس میں نکاح نامہ فل ہو جائے گا. نکاح پڑھانا ہے تو پھر ہم بیٹھے بیٹھے ہاں بھائی قبول ہے قبول ہے, یہ تو 2 منٹ کا کام ہے. خطبہ تو جو جمعے کا خطبہ ہے وہی گریوی میں نکاح کا بھی ہو جائے گا. کیا خیال؟ تو گریوی کے چکر میں تھے ہم, گریوی مارنے کے. اب اس میں کیا ہوا کہ یہ لوگ 1 بجے سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے میسج ہی نہیں بھیجا. ادھر میں سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہوں. مجھے بھی دماغ اب کھلنے لگا کہ یار میں وہ آئے کیوں نہیں, کیونکہ یہ ٹائم تو ان کو دے دیا نا. تو اب میرا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور یہ ادھر نیچے آ کے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب جب میں نیچے آیا ہوں تو کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میں اوپر بیٹھ کے آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں. تو یہ ان کی بات نہیں ہے, یہ اصول اور ضابطے کی بات ہے کہ ہم من حیث القوم بد نظمی کا شکار ہیں. من حیث القوم یعنی سبھی ہے, میں بھی ایسا ہی ہوں, اس میں سب ایسے ہیں. اس چیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ بھائی جو بات جس نے کہی ہے اس کا خیال کرنا چاہیے انسان کو, تاکہ نہ میرا ٹائم ویسٹ ہو اور نہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو. اب میں نے ان کے ذمہ لگایا ہے کہ اب یہ نکاح نامہ خود فل کریں گے, تاکہ ہم جو بیان کے دوران جو ہمارا ٹائم ہے نا وہ بیان میں ہی مصروف رہے, اور یہ نکاح نامہ خود بیٹھ کے فل کریں, تاکہ ہمارا جو ٹائم ادھر لگا ہے اب یہ سمجھ رہے ہو بات کو. یہ بھی بیان کا حصہ ہے, کوئی بیان سے اضافی بات نہیں ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص پنجاب سے آیا, اتنا لمبا سفر کر کے حضرت کے پاس پہنچ گئے. اور کیوں آئے ہو؟ فرمایا میں تعویذ لینے آیا ہوں. تعویذ اگر کچھ شرائط ہیں اس کی ان کے ساتھ ہو تو جائز ہے اس کا استعمال. حضرت نے فرمایا کہ آپ پنجاب سے آئے ہو, پہلی بات یہ کہ آپ نے مجھ سے ٹائم لیا تھا, اتنی دور سے آپ سفر کر کے آئے ہیں. دوسری بات یہ کہ تعویذ تو TCS کے ذریعے بھی پہنچ سکتا ہے, صرف تعویذ لینے کے لیے اتنی دور سے آپ سفر کر کے کراچی پہنچے ہو. حضرت کو اتنا غصہ آیا, وہ تو بڑے تھے, انہوں نے فرمایا نہیں دوں گا, واپس جاؤ. آئی بات سمجھ؟ تو فرمایا ایک دفعہ ان کو سزا ملے گی, پھر یہ واپس جائیں گے, آئندہ ایسی حماقت, اپنا بھی ٹائم بچائیں گے. اور فرمایا واپس جاؤ, وہاں سے اب دوبارہ خط لکھو. خطوط کا سسٹم تھا حضرت کے یہاں, تو اب آپ کو جو ہے نا وہ وہیں سے بھیج دیں. یا تو مقصد آنے کا زیارت کرنا ہو نا, کسی کو دیکھنا مقصد ہے, اس کے لیے پھر یہ کہ بھائی صرف دیکھنے آ رہا ہوں, زیارت کرنے آ رہا ہوں. تو اس کے لیے حضرت ان کو جو ٹائم دیا کرتے تھے وہ ایسا ٹائم ہوتا تھا جس میں حضرت علماء کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے. جو جس نے زیارت کرنی تھی ان کو ٹائم دے دیتے کہ یہ ٹائم ہے, اس میں دیکھ کے چلے جاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا حضرت کو فائدہ یہ ہوتا تھا. حضرت فرماتا ہوں جو زیارت کے لیے آتے ہیں نا وہ سب سے سستے میں چھوٹ جاتے ہیں. بھائی آگے بیٹھ گئے, زیارت کر لی تو ٹھیک ہے نا, بس صحیح ہو گئی. تو جب ایک انسان اصول سے اور ضابطوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے, 100% تو کوئی بھی نہیں چل سکتا, تو اس میں الجھنیں کم ہوتی ہیں. اسی وجہ سے میں نے دعوتوں میں جانا بالکل چھوڑ دیا ہے, قسم اٹھانا رہ گئی ہے بس. کیونکہ بہت دفعہ کا تجربہ ہے کہ جو ٹائم دیا جاتا ہے اس کی کبھی بھی پابندی نہیں ہوتی, ناممکن ہے. قسمیں اٹھوا لو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے, بھائی 8:15 بجے کھانا شروع ہو جائے گا, لیکن وہ 8:15 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا نا کہ 8:15 کا مطلب 8:45 ہوتا تو ہمیں کوئی ٹائم دیتا 8:15 تو ہم کہتے چلو 8:45 تک تو ہو ہی جائے گا, تو ہم 8:45 پہ پہنچتے. ہوتا نہ 8:45 پہ ہے, نہ کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کب ہوگا اور کیا ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس لیے
जो टाइम मैनेजमेंट वाले लोग हैं ना, टाइम मैनेजमेंट वाले, वो एक बात बड़ी जबरदस्त करते हैं कि जिस आदमी ने अपना वक्त बचाना हो वो कभी दूसरे पे डिपेंड होकर जिंदगी ना गुजारे। बहुत मुश्किल है समझाना बात। ये बयान शुरू हो गया है, बयान जो है वो शुरू हो गया है। आप समझा, बयान शुरू करेंगे, हो गया बयान। तो कभी भी दूसरे पर आपके टाइमिंग का जो है ना मदार नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने कहीं पहुंचना है, नाश्ता कौन बनाता है घर में? बोल लो भाई, बेगम। अब आपने किसी को टाइम दिया है सुबह 8 बजे का, बेगम ने उठ के नाश्ता बना के आपको पेश करना है। अगर बेगम ये चीजें समझती है तो ठीक टाइम पे आपके सामने नाश्ता पेश कर देगी। लेकिन अगर उससे सुस्ती हो गई, वो सोती रह गई, या उसका मूड नहीं था, या देर हो गई, तो आप कभी भी वक्त पर नहीं पहुंच सकते। उसका हल क्या है कि आपको खुद भी नाश्ता बनाना आना चाहिए। भाई पहले मुझे एक बात बताओ, वक्त की हिफाजत करना ये हमारी मजहबी जिम्मेदारी है या नहीं? आप कहेंगे क्या फालतू बातें लेके बैठ गए, अगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो क्या हुआ? आप जहन में सोच रहे होंगे भाई अगर किसी को 8 बजे का टाइम दिया और नहीं पहुंचे तो क्या हो गया, इससे क़यामत आ गई, 10 बजे पहुंच जाएंगे। हम भी तो घंटों घंटों दूसरों का इंतजार करते हैं, वो अगर 2 घंटे हमारे इंतजार में बैठ गया तो क्या हो गया? तो भाई ये सोच ही गलत है। ये जो वादा है ना, वादा खिलाफी, जानबूझकर बगैर किसी उज़र के वादा खिलाफी करना ये गुनाह है। कोई उज़र हो तो एक अलग बात है, लेकिन बिला उज़र वादा खिलाफी करना ये गुनाह है। और उज़र किसे कहते हैं? कुदरती हादसा हो जाए कोई, इसे उज़र कहते हैं। जो चीजें रोजमर्रा के मामूल में शामिल है वो उज़र में दाखिल नहीं है। आप कहें कि बेगम ने नाश्ता ही देर से बना के दिया था, ये तो सबकी बेगमें ऐसे करती है। वो कोई आर्मी में थोड़ी है आपकी बेगम कि उसने जो है ना वो कोर्स थोड़ी किए ISSB के कि उसको पूरा टाइम का पाबंद बनाया गया। वो तो जाहिर है इस घरों में तो ये चलता ही है सब कुछ। अब बाज लोग बेगम पे बरस रहे हैं, मेरा 8 बजे का टाइम था और नाश्ता मुझे 8:02 पे मिल रहा है, इस पे गुस्से हो रहे हैं। तो इससे तो घर का माहौल खराब होगा। ऐसा सीधा दुनिया में कोई भी नहीं, आप नहीं कर सकते किसी को। उसका तरीका क्या है कि आपको नाश्ता बनाना, बोलो ना भाई यार, आने। और रात को आपने किसी को टाइम दिया है कि सुबह 8 बजे मैं पहुंचूंगा, तो उसका मतलब यह है कि नाश्ते की फिक्र आपको रात में करनी है कि अगर बेगम ने टाइम पे नहीं दिया तो फिर मेरे पास इसका ऑल्टरनेट, इसका मुतबादिल क्या है। तो ये फिक्र कब से करनी है? पहले से। समझ रहे हो कि नहीं समझ? देखो दुनिया की बाज कौमें ऐसी हैं, आज हम उनकी बहुत तारीफें करते हैं कि यार इतनी शानदार कौमें, इतनी जबरदस्त कौमें, हम उनकी तारीफें करते हैं, यार इनमें बड़ी खुसूसियात है। लेकिन अगर वही खुसूसियात हम में से किसी फर्द में हो तो उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। ये बंदा ही ठीक नहीं है। जापानी जो है, जैपनीज, उनकी बहुत बड़ी खुसूसियत क्या है? वक्त की पाबंदी है कि नहीं है? हमारे एक रिश्तेदार जापान में, कंपनी ने उनको ये बताया कि आपने इस शहर से उस शहर सफर करके जाना है। कंपनी ने भेजा किसी काम से। दोनों शहरों में फासला ऐसे था जैसे कराची और सक्खर, अच्छा खासा फासला है। कराची से सक्खर पहुंचने में 8-9 घंटे लगते हैं, अच्छा खासा फासला है, बल्कि शायद ज्यादा ही लग जाते हो। इतना लंबा फासला जापान के 2 शहरों में। तो एक किनारे से बिठाया है, दूसरे किनारे पे पहुंचाना है। कहते हैं कि मैं जब ट्रेन में बैठा हूं तो जो एग्जैक्ट टाइम था ट्रेन के चलने का, इत्तेफाक से ट्रेन उसी वक्त चल पड़ी। उनको बड़ी हैरानगी हो रही थी कि ट्रेन में जो टाइम लिखा हुआ था ना 8:03, तो चली कितने बजे? पाकिस्तानी तो बेहोश नहीं हो जाएगा? बोलो भाई, पाकिस्तानी ये मंजर देख के समझेगा मैं चांद पे हूं या मैं मरीख पे बैठा हूं। ये जमीन की बातें नहीं। कह रहे इससे ज्यादा अजीब बात यह थी कि लिखा हुआ था कि, मिसाल दे रहा हूं मैं, कि ट्रेन 8 यानी कोई भी टाइम था जो मुझे अभी याद नहीं है, मसलन 4:11 पे पहुंचेगी। 9 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, कितने? 11 मिनट पे फलां स्टेशन पे होगी, यानी सक्खर जैसे आप फर्ज कर लें, इतना फासला था। कह रहे 11 मिनट पे, 4:11 पे आपकी विंडो के सामने एक बंदा आपके नाम की स्लिप लेके, आपके नाम की जो वो तख्ती लेके खड़ा हुआ होगा आपकी इस विंडो के साथ। यानी ट्रेन का डब्बा भी मुतय्यन था कि 4:11 पे ये डब्बा प्लेटफॉर्म के इस मकाम पे होगा। तो वो बंदा पहले से खड़ा हुआ है कि 4:11 पे
इस नाम का आदमी विंडो में बिल्कुल मेरे सामने होगा। आप समझ रहे हैं कि शायद मैं गलत किस्म की बातें कर रहा हूं आपके साथ। भाई हमने तो जो सुना आपको बता दिया, अब वो छोड़ूं तो एक अलग बात है, अगला ही छोड़ रहा हो फिर तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन एक आदमी छोड़ता है, दो छोड़ते हैं, सारी कौम तो छोड़ू नहीं हो सकती ना। बहुत लोगों से इस किस्म की खबरें सुनी। ठीक 4:11 पे गाड़ी वहां रुक चुकी थी और मेरे नाम की तख्ती लेके बंदा सामने खड़ा हुआ। अब हम कहते हैं वाह क्या सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी कौम, कहते हैं ना, तारीफें करते हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ा जबरदस्त, भाई वाह वाह वाह, भाई वाह। हमारे यहां अगर कोई आदमी ऐसा पाबंद हो कि उसने आपको टाइम दिया हो कि मैं 8:11 पे वहां पहुंचूंगा, 11 मिनट, ठीक है, कुछ पता नहीं होगा कि पहला तो ये कि पहुंचेगा कि भी नहीं पहुंचेगा, हो सकता है आए नहीं, एक हफ्ते बाद आपको फोन कर रहा है, यार वो मैं तो भूल ही गया था, यार मुझे पता ही नहीं था। फिर अगर आया तो 8:11 तो कभी नहीं बोलेगा, एक लमसम टाइम बताएगा, हो सकता है 8 से लेके 1:45 बजे के दरमियान किसी भी वक्त आ सकता हूं। अब आप वहां स्टेशन पे मंजी डाल के, थोड़ी थोड़ी मैं भी पंजाबी सीख रहा हूं, चारपाई को मंजी कहते हैं ना, मंजी डाल के आप एयरपोर्ट पे सो जाए, किसी भी वक्त आ सकता है। तो और अगर टाइम का पाबंद हो ना तो लोग उसको बेवकूफ समझेंगे, बोलेंगे ये पागल है। आज मैंने किसी को टाइम दिया था 11:30 बजे का, कहीं जाना था मुझे, मैं पहुंच गया 11:30 बजे, मैं अकेला ही बैठा हुआ था वहां पे। मैं भी कोई इतना ज्यादा टाइम का पाबंद नहीं हूं, लेकिन होने की कोशिश बहरहाल करता हूं जिस हद तक मुमकिन हो, कोशिश होती है। और ये ऐब है, ऐब, ये समझता हूं कि अगर मेरे अंदर भी खामी है वक्त की पाबंदी ना करने की, तो कम से कम इसको गुनाह समझ के तौबा की तौफीक मिल जाती है। ये भी गनीमत है कि आदमी उस गलती को गलती तो माने ना, कि भाई इसकी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। तो हम पहुंच गए, हम अकेले ही बैठे हुए थे। अब मैंने इनको जो टाइम दिया हुआ था उसमें यह भी था कि भाई मैंने वापस भी आना है, जुमा पढ़ाना है, 1 बजे किसी और को टाइम दिया हुआ है, मैंने यहां निकाह वालों को टाइम दिया हुआ था। तो हम भागे भागे फिर वहां से अफरा तफरी में यहां पहुंचे, तो वो निकाह वाले बैठे हुए बेचारे इंतजार में। अब उनकी क्या है फजाइल मजीद सुनाओ, ठीक है। अब उनको हमने काम पे लगा दिया, निकाहनामा फिल करो। ये मेरा काम था, मगर अब ये उनका काम था। मैं खुद ही कौन सा करता हूं, मैं तो किसी और से ही करवाता हूँ। टाइम बचा ना, जो काम कोई और कर सकता है वो मैं बैठ के क्यों करूंगा। 50 रुपए पकड़ा दो उसको, यार फिल कर ले। मैं जो निकाह पढ़ाता हूँ ना, लोग समझते हैं मैं फिल करता हूँ, मैं 100 रुपए पकड़ा के किसी से फिल करवाता हूँ। इसलिए कि मैं कहता हूँ कि जितना टाइम निकाहनामा फिल करने में लगेगा वो 100 रुपए से ज्यादा कीमती है। क्या ख्याल है भाई, उस टाइम में हम कोई और काम कर लें। तो 100 रुपए में हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह के पास एक केस आया। उस जमाने में 50,000 रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम होती थी। 2 पार्टियों का फड्डा था 50,000 का। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ दावा किया था। एक का कहना था कि इसके मेरे जिम्मे 50,000 है, इसका कहना था कि इसके मेरे जिम्मे। दोनों पार्टियां आई, हजरत को हकम बनाया, सालिस बनाया। हजरत उनके पास बैठे। हजरत को अंदाजा हो गया कि केस बहुत लंबा है, इसमें टाइम बहुत लगेगा। और दूसरी तरफ हजरत सालिस बन भी चुके थे। अब जब आप किसी के दरमियान सालिसी का काम करना शुरू कर दें और दरमियान में क्या मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये बदअखलाकी की बात है ना। भाई टाइम नहीं था तो आपने सालिस बने क्यों, हकम बने क्यों, अब लटका के क्यों छोड़ रहे हैं हमें। तो अब फैसला भी करना था उनको, और हजरत समझते थे कि जल्दी में फैसला हो नहीं सकता। तो हजरत ने इसका हल ये सोचा, फरमाया कि आप दोनों को मैं 50, यानी इसने इससे 50,000 रुपए लेने हैं ना, तो फरमाया कि आप इससे ना ले, मैं आपको अपनी जेब से 50,000 दे देता हूं। बहुत मुश्किल है मेरा ख्याल है। मैं आपको अपनी जेब से 50,000 रुपए दे देता हूं और ये फटा खत्म। उसने कहा क्यों भाई। हजरत ने फरमाया असल में मेरा जितना टाइम लगेगा ना इस केस को निपटाने में, वो वक्त मेरी नजर में 50,000 से ज्यादा कीमती है। समझ रहे हो कि ये वो बहुत बड़े लोग थे, कहीं मेरे बारे में खुशफहमी में ना रहे कि मैं कोई केस आएगा तो 50,000 रुपए दे दूंगा आपको, ठीक है। 100 रुपए और 50,000 में फर्क। निकाहनामा जो है ना वो 100 रुपए से ज्यादा मैं रेट नहीं बढ़ाता फिल करवाने के। तो मैं जो है वो हजरत ने क्या कहा कि 50,000 रुपए मुझसे ले ले और जाए, अल्लाह लगा। हमारा भी टाइम ने भी बहुत सारे काम करने, आप भी जाओ उसी को जिंदगी गुजारो। तो ऐसा था कि वो जो बड़े उलमा होते हैं ना, वो अपने औकात को इतना ज्यादा कीमती समझते हैं। हम तो वैसे नहीं है, लेकिन बहरहाल जो बड़े हजरात हैं उनके औकात बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। और वो इतने बड़े बनते ही इसलिए हैं कि उन्होंने शुरू से ही अपने औकात की कदर को पहचाना होता है। ये एक इश्काल का जवाब दिया मैंने
इश्काल ये होगा कि आप ये कहेंगे भाई वो तो बड़े लोग हैं, उन पर तो ये चीजें सूट करती हैं, हमारी तो वो हैसियत नहीं है। क्या ख्याल है भाई? तो भाई वो बड़े बने इस वजह से हैं कि उन्होंने शुरू से अपने औकात को इतना कीमती बनाया है। हमारे हजरत वक्त की हिफाजत की एक मिसाल दिया करते थे, बड़ी जबरदस्त, वो मिसाल आप लोग भी नोट कर लें। फरमाते थे कि वक्त आपके पास ऐसा होना चाहिए, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक बोतल पानी से भरी हुई हो। एक बोतल पानी से भरी हुई, इतनी भरी हुई है कि उसमें एक बुलबुला भी नहीं आ सकता हवा का। थोड़ी सी बोतल खाली होती है तो बबल आते हैं ना उसके अंदर, तो इतनी भर गई है वो बोतल कि अब उसके अंदर एक बुलबुला भी, बोलो यार कुछ बोला करो, लगा नहीं आ सकता। आप सबकी तरफ से फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं, बुलबुला भी नहीं आ सकता उसके अंदर। अब फरमाया कि अगर आपने उसमें मजीद पानी डालना है तो चला जाएगा, पिछला वाला पानी निकालना पड़ेगा। जब तक पिछला पानी नहीं निकालोगे अगला पानी नहीं आ सकता। तो पिछला पानी कब निकालोगे? जब नए पानी की कदर ज्यादा होगी और पिछले वाले की कदर कम होगी। तो कहते थे कि हमारी जिंदगी ऐसे होनी चाहिए कि हमारी जो बोतल है ना, 24 घंटे का ये टाइम, ये बोतल है, और इसमें हमने जो काम करने हैं वो पानी की मिसाल है, और ये बोतल हमारी 24 घंटे की भरी हुई है। टाइम हमारे हर चीज के मुतय्यन है। अब अगर कोई आदमी आपसे टाइम मांगता है या कोई काम आपसे टाइम मांगता है, बाज दफा आपसे टाइम कोई बंदा मांगता है ना कि हजरत मुझे 25 मिनट चाहिए, या बाज दफा कोई काम आपसे टाइम मांगता है। भाई जैसे अब्बा का फोन आ गया, बेटा जरा यहां पहुंचो 15 मिनट के लिए तुमसे काम है, तो अब ये तो चले अब्बा आपसे टाइम मांग रहे हैं। कोई काम की मिसाल ऐसे है कि आप को एक कोई जो आपने काम के लिए कोई टाइम मुतय्यन किया था, उस दौरान कोई और काम आ गया आपका, उस दौरान कोई और काम, वो काम ऐसा है कि ये वाला काम, वो काम अगर करेंगे तो आपको ये वाला काम छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे? जैसे आप कारोबार कर रहे हैं तो आपको पता ये चला कि यार मैं अपनी दुकान में इतना टाइम लगा रहा हूं बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए, पता ये चला कि एक बंदा आया हुआ है, बिजनेसमैन है, वो कारोबारी मशवरे बहुत अच्छे देता है। अब आप दुकान बंद करके, ये भी एक काम है ना जो आपसे टाइम मांग रहा है। बहुत सारे काम हो सकते हैं दीनी एतबार से भी और दुनियावी। और इसकी आसान मिसाल कि आप किसी अहम काम में मसरूफ है और जनाजा तैयार है किसी का, तो भी जनाजा पढ़ना है आप। अब आपने जो प्रोग्राम बनाया हुआ था कि मैं 2 सुन्नतें पढ़ूंगा, उसके बाद फौरन मैं पतली गली से हस्बे मामूल भागूंगा। भाई मस्जिद में ऐसे ही होता है ना, 2 सुन्नत पढ़ो और फौरन निकलो। तो रोज के मामूल की तरह मैं भागूंगा और मैं फला जगह फिर चाय पीऊंगा, ये करूंगा। अचानक क्या आ गया? जनाजा। अब वो आपसे टाइम मांग रहा है कि नहीं मांग रहा? वो जो आपने कहीं और टाइम देने का प्रोग्राम था, ये मिसालें उनकी समझ में आएंगी जिनका पहले से कोई प्रोग्राम भी हो। मैं भी हैरान हूं कि आप लोग को समझ में क्यों नहीं आ रहा। असल में जिसका पहले से कोई शेड्यूल हो उसकी तो समझ में आएंगी, शेड्यूल ही नहीं है तो आप कहेंगे पता नहीं किस किस्म की बातें कर रहे हैं मौलवी साहब, कोई शेड्यूल नहीं है। बहुत बाज हजरात को ये ख्याल हो गया यार क्या टाइम, उसको टाइम देना जनाजा है, क्या कैसी बातें कर रहे हैं। तुम तो सुबह उठे, जब आंख खुली तो उड़ गए, सोते सोते थक गए तो क्या किया? उड़ गए। उठने के बाद सोचा अब क्या करें, कोई शेड्यूल मेड्यूल नहीं होता हमारा। उठने के बाद सोचा अब क्या करें, चलो ये कर लेते, नाश्ता कर लेते, अब क्या करें, चलो देखते हैं यार क्या करना है। तो मस्जिद में बैठे हैं, जनाजा आ गया तो ठीक है, जनाजा आ गया, नहीं आया तो भी ठीक है। तो अगर कोई पहले से तरतीब हो ना, ये करना है वो करना है, तो फिर ये सारी चीजें इंशाल्लाह समझ में आएंगी। तो अब कोई भी आपके पास काम आया तो इसका मतलब है कि बोतल आपके पास पहले से क्या है? भरी हुई है। तो अब नया काम जब इस अपने टाइम की बोतल में डालोगे तो पुराने कामों में से एक काम का नुकसान लाजमी होगा। अगर नहीं हो रहा नुकसान, इसका मतलब आप अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। ये अलामत है इस बात की कि आप अपने टाइम को मैनेज करके और कीमती बना के जिंदगी गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे। जब भी कोई नया काम आएगा पुराने काम का नुकसान होना चाहिए। बात नहीं आ रही मेरा ख्याल है समझ। और अगर नुकसान नहीं हो रहा इसका मतलब है आप टाइम के पाबंद तो एक पाबंदी एक अलग चीज है, आप अपने टाइम को जाया कर रहे हैं क्योंकि कोई नई चीज आ रही है, पुरानी चीज आ रही है। बोतल खाली हो तो जितना पानी डाल दो, पुराना पानी निकालना ही नहीं पड़ेगा इसमें से। अब रहा यह मसला कि जब नया काम आपकी जिंदगी में आया या उस बोतल में आया
تو पुराने वाले को निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा? नहीं निकाला जाएगा। ये कह रहे निकाला जाएगा, जरूरी नहीं है, देखा जाएगा कि नया वाला ज्यादा अहम है या पुराना वाला। समझ रहे भाई? नया वाला ज्यादा अहम है या पुराना वाला। और उसमें यह भी देखा जाता है कि पुराना वाला अहम तो ज्यादा है मगर उसके लिए टाइम फिक्स नहीं है, वो कल भी हो सकता है। नया काम जो अभी आया है ये अगरचे बहुत ज्यादा अहम नहीं है मगर इसका टाइम निकल जाएगा। अब आपने गफ्फार भाई को टाइम दिया हुआ है अंडा मोड़ के होटल पे मिलने का। आपने कहा कि ठीक 3:06 पे, जापानियों की तरह ना, ठीक 3:06 पे मैं चाय के होटल पे आपसे मिलूंगा क्योंकि मैं टाइम का बहुत पाबंद हूं। मैंने जापानियों की खबरें सुनी है और मुझे अच्छा लगा, तो मैं भी चाहता हूं, और शरीयत का तो वैसे ही हुक्म है, तो मैं भी चाहता हूं कि ऐसा पाबंद बन जाऊं। एन 3:05 पर जनाजा तैयार है गफ्फार भाई का। अल्लाह गफ्फार भाई को भाई जो भी है आपको जिंदगी दे, आपके अलावा कोई और मिसाल दे रहा हूं। अब मसला क्या है, अब आप अगर जनाजे की नमाज पढ़ेंगे तो वो जो 3:06 वाला टाइम है उसमें गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? क्या ख्याल है? अब आपने क्या करना है, यहां ये देखना है कि ये ज्यादा अहम है या वो। तो अगर गफ्फार भाई आपके करीबी रिश्तेदार हैं फिर तो यकीनन यही ज्यादा अहम है क्योंकि जनाजा पढ़ना ये ज्यादा अहम है। तो आप ऐसे मौके पे सत्तार भाई को कॉल करेंगे, भाई एक इमरजेंसी हो गई है, मैंने ये कॉल करना भी फर्ज है आपके ऊपर। अगर आप नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे क्योंकि अगले को जो कोफ्त होगी ना वहां इंतजार की, उस कोफ्त का गुनाह किसको होगा? आपको होगा, और इसका क़यामत के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ सॉरी कर लेना काफी नहीं है। जितना टाइम सॉरी में लगता था उतने टाइम मैसेज भेजने में क्यों नहीं खर्च कर दिया भाई पहले? तो मैं यस कर रहा था कि आपने 3:06 का टाइम दिया किसी को, और क्या आ गया उस दौरान? जनाजा है, या रिश्तेदार का जनाजा तो नहीं है लेकिन जनाजा ऐसी जगह है कि आप वहां खुद मौजूद हैं। तो उलमा कहते हैं अगर जनाजा मौजूद हो तो फिर आप पे पढ़ना वो फर्ज हो जाता है, फिर वहां से आप भाग नहीं सकते। या तो कोई बहुत ही इमरजेंसी हो तो एक अलग बात है, तो फिर वहां जनाजा, जैसे मस्जिद में ऐलान हो गया भाई नमाज के बाद जनाजा है, अब आप बिला वजह कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, तो ये भी एक मुसलमान के साथ बेरुखी की बात। तो ऐसे मौके पर आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप उसको फोन करके बताएंगे कि भाई एक इमरजेंसी हो गई है, एक जनाजा हो गया है, मैं जनाजा पढ़ के आ रहा हूं, तो 3:05 के बजाय 3:16 के अंदर अंदर पहुंच जाऊंगा। अब आप सवाल पैदा होता है ये इशारिया निजाम जनाजे में कैसे चलेगा? आपको क्या पता इमाम साहब कितने मिनट की नमाज पढ़ाएं? तो भाई जितने मिनट की नमाजें होती हैं उसमें 2-4 मिनट इजाफी ऐड कर ले। क्या ख्याल है? तरावी जितनी तो नहीं पढ़ाएंगे ना, वो 2 मिनट की हो जाएगी, ज्यादा 5 मिनट की, बहुत ज्यादा 5 मिनट की हो जाएगी। तो आपने जो गफ्फार भाई बैठे हुए अंडा मोड़ पे आपका इंतजार कर रहे हैं, उनको आपने 2-4 मिनट इजाफी रख के बताने हैं ताकि आप जल्दी पहुंच जाएं तो वो खुशी से मर जाएं, और अगर जल्दी ना पहुंचे, टाइम पे पहुंचे, तो कहें भाई यही टाइम दिया था इन्होंने। यहां तक समझ में आ गई बात? बहुत अहम मौजू है ये, और ये हमारे अकाबिर जो हमारे बुजुर्गान दीन है इसका बहुत ज्यादा ख्याल किया करते थे इन चीजों का, जो कि आजकल मार्केट में ये चीजें